السلام علیکم لسنرز. ناول طور محبت، رائٹر میمونہ نصر اللہ. اس کی ساس بیٹے کے گھر رہنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن جانے کیوں چلی گئی تھی اور جاتے جاتے اسے شوہر کو قابو کرنے کی یعنی شہرین کا عشق اتارنے کی کئی نسخے بتا گئی تھی. وہ بھی بیٹے کے کمرے میں شہرین کی تصویریں دیکھ چکی تھی. صبا نہیں جانتی تھی کہ ان ماں بیٹے نے اس پر کیا بحث کی تھی، لیکن اس پر بہت غصہ کیا تھا کہ اس نے وہ تصویریں کیوں نہیں اتروائی تھی. بچوں پر توجہ کی بجائے شوہر پر توجہ دے. وہ خاموشی سے سب سنتی رہی تھی. صبا نے ان کے جانے کے بعد جسے سکھ کا سانس لیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو صبا ناپسند تھی، بات یہ تھی کہ انہیں اپنی بہو کا بچوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ پسند نہیں تھا. بچوں کے ساتھ ان کا رویہ صبا کے صبر کا جیسے امتحان تھا. بچوں کے لیے وہ پہلے رشتہ دار تھے جنہیں وہ دیکھ رہے تھے. وہ دادی پھپھو کرتے آگے پیچھے پھرتے اور وہ بیزار ہو جاتی. بچے تھے، ان رویوں کو محسوس نہیں کر سکتے تھے، لیکن صبا کے تو جیسے دل پر لکھے جا رہے تھے. وہ ان لوگوں کو دبے لفظوں میں ٹوک چکی تھی، لیکن ان باتوں سے وہ دونوں ہی اس سے ناراض ہو گئی تھی. اس لیے ان کے جانے پر صبا نے سکھ کا سانس لیا تھا. وہ حیران ہی ہوتی رہی. کیسے شکی القلب قسم کے لوگ تھے کہ دشمنی ہر رشتے سے اوپر تھی. ہادی کے خاندان میں بھی کسی کو ان بچوں کا نہیں پتا تھا، اس لیے اس کی ساس رشتہ داروں کو ملنے خود جاتی تھی. کسی کو بھی ہادی کے گھر دعوت نہیں دی گئی تھی. ان کا یہ طرز صبا کو بچوں کے لیے مزید پوزیسو کر گیا تھا، اور یہ پوزیسونیس ہادی ہی محسوس کر سکتا تھا. وہ ویسے بھی بچوں پر غصہ نہیں کرتی تھی، مگر اب تو بس نہیں چلتا تھا کہ کہیں چھپا ہی لے انہیں. اور ہادی اور اس کے گھر والوں پر غصہ بڑھ جاتا تھا، اور جتاتی نظروں سے ہادی کو دیکھتی وہ نظریں چرا لیتا تھا. اس کی ساس اپنے ساتھ اسے بھی لے جاتی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو گھر چھوڑاتی تھی. یہ اور بات جب وہ ان چند گھنٹوں میں ایک طرف جا کر بچوں کے لیے گھر فون کرتی تھی، اس کی ساس کے ماتھے کے بل ان گنت ہو جاتے تھے. اور فون والی بات پر ان کی ناگواری کا احساس اگر صبا کو ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات کا ذکر نہ کرتی. اپنے اٹھ کر جانے کا کوئی بھی بہانہ کر دیتی. آپی بھی میزبانوں کے بیچ بیٹھ کر اسے اٹھتا دیکھ کر ضبط کی مسکراتی رہتی، اور ہر وزٹ کے بعد تینوں خواتین بس مروت کے مارے ایک دوسرے سے باتیں کرتی. اس کی ساس اور نند کو صبا پر غصہ ہوتا، اور صبا کو ان دونوں کے علاوہ ہادی پر بھی. ایسا بھی کیا خاندان کا ڈر کہ انسان اپنی اولاد کو بھی ظاہر نہ کرے. ہادی اپنے خاندان میں زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا. دوسرا، صبا بھی شادی کے بعد ساس نند کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ کسی کے گھر نہیں گئی تھی. اس کی ساس کے آنے سے دراصل اب اسے زندگی بہت الجھی ہوئی لگتی تھی. وہ شروع کے کچھ دن چھوڑ کر پھر الجھی رہنے لگی تھی. یہ کیسی عجیب سی زندگی تھی. سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا. جو تھوڑا بہت پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس لیے اس نے ساس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا، اور اس کی ساس نے جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا یہ وہ خود ہی جانے. ان کے جانے کے بعد صبا کا ان کے رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ اپنے سر پر اتنی ٹینشنز نہیں لاد سکتی تھی. یہ بھی شکر کہ ان لوگوں کو اس کی ساس کے گھر کا پتہ تھا. ہادی نے اپنے گھر ایک بار بھی کسی کو نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی کوئی آیا تھا. صبا کو بس حیرت اس بات کی تھی کہ یہ شہر کوئی لاہور جتنا بڑا تو نہیں تھا کہ ہادی کی شادی کی خبر چھپانے پر چھپ گئی تھی. یہ شاید کسی کو معلوم بھی تھا تو صبا کے خیال سے یہ خبر کسی کو معلوم نہیں تھی. ان گزرے دنوں میں بس ایک بات اچھی ہوئی تھی کہ ہادی نے اس سے اپنے تعلقات بہت بہتر کر لیے تھے. ہر بار جب وہ غصے میں بھری گھر پہنچتی تھی بچوں پر توجہ بڑھ جاتی. دیکھا جاتا تو یہ صورتحال صبا کے حق میں جاتی تھی کہ اس کا سسرال اس کے ساتھ تھا. وہ سوتیلے بچوں کو ایک طرف کر دیتی تو یہ ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث بنتا. لیکن وہ صبا تھی جسے اماں الٹی کھوپڑی کہا کرتی تھی، جو بہتے دریا کی مخالف سمت میں بہنا پسند کرتی تھی. اس لیے اسے اپنے سسرالیوں کی اپنے لیے محبت اور بچوں کے لیے نفرت
نے ان سے بیزار کر دیا تھا۔ صبا اپنا اور بچوں کا سامان واپس اپنے کمرے میں رکھ رہی تھی۔ ہادی ایک جانب رکھی کرسی پر بیٹھا موبائل میں مگن تھا، ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے بھی دیکھ لیتا تھا۔ اگر تم یہیں رہ جاؤ اور بچوں کے لیے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دو، ہادی لاپرواہ انداز میں بولا۔ صبا تڑپ کر پلٹی اور اسے گھورا۔ بہت شکریہ آپ کی آفر کے لیے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے تو صلح مار کر اپنا میزبانہ فرض نبھایا۔ ہادی نے کندھے اچکائے۔ صبا نے رخ موڑ کر اسے چڑھایا۔ فرض نبھایا، اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی رہی۔ ویسے تم لڑکی اتنے کپڑے کیوں بنواتی ہو؟ اب دیکھو، جیسے صرف 1 مہینے کے لیے ڈھیروں کپڑے تم یہاں لے آئی۔ یقیناً ہادی اس وقت اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا، اور صبا پتہ نہیں کیوں سامان سمیٹتے ہوئے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ہاں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسی چڑچڑے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں لڑکیاں اتنا بن ٹھن کر کیوں رہتی ہیں۔ ہادی اسی طرح اپنے راگ الاپ رہا تھا۔ صبا ضبط کیے رہی۔ پتہ نہیں لڑکیوں میں اتنا غرور کس بات کا ہوتا ہے۔ یہ سارے پتہ نہیں میں دراصل صبا کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ جی ہاں، ہادی اور صبا کے تعلقات ذرا بے تکلفی تک آ چکے تھے، جس میں سارا ہاتھ ہادی کا تھا، ورنہ صبا کی بلا سے ہادی جہاں جائے۔ اور ہادی یہاں تک کیسے آیا تھا، اس کے لیے ذرا کچھ دن پیچھے جانا پڑے گا۔ جب ایک رشتہ دار کے گھر سے واپسی پر وہ حسب معمول غصے میں تھی، اور اس غصے کو بس کمرے میں آ کر ظاہر کرتی تھی اور نکالتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی، دونوں بچے ہادی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں بچے اسے دیکھ کر خوشی سے بیڈ سے چھلانگے مارتے اس تک پہنچے۔ مما! اس نے جھک کر دونوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ میری جان! اس نے باری باری دونوں کو چوما۔ مما، ہمیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتی ہیں؟ میں کل آپ کے پرس میں چھپ جاؤں گا۔ احد نے منہ پھلا کر اپنی توتلی آواز میں ناراضگی جتائی۔ صبا نے سلگتی نگاہوں سے ہادی کو دیکھا اور پھر احد کے چہرے کو چوما۔ میں کل کہیں نہیں جاؤں گی، سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں گی۔ کل میری یونیورسٹی سے بھی چھٹی ہے۔ دونوں بچوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ ان دونوں کو لیے وہ بیڈ کی طرف آئی۔ احد کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نورین نے اپنی ننھی بازوؤں کو اس کے گردن میں ڈالا ہوا تھا، اور صبا کو پتہ تھا ابھی نورین نے اس سے الگ ہونا بھی نہیں تھا۔ پھر اتنے دنوں سے یونیورسٹی اور ساس کے ساتھ آنے جانے میں وہ بچوں کے ساتھ تو بس رات کو ہی بیٹھ سکتی تھی، اور پھر صبح کو وہی مصروفیت۔ وہ احد کے سوالوں پر ہنس رہی تھی، جس کے جواب اسے تو کیا آتے، البتہ نورین کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب ہوا کرتا تھا، ویسے جواب جیسے 1 سال کے فرق والے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ کیا ہوا جو وہ دونوں ہی ذرا تتلا کر بولتے تھے، لیکن جب مقابلہ ہوتا تو بڑا ہی کانٹے دار ہوتا تھا۔ ابھی بھی نورین صبا کے دائیں جانب تھی۔ صبا نے تھکن کے باعث بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ احد ہادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں سے باتیں کرتے ہوئے صبا کو نیند آ رہی تھی، لیکن ان کے لیے جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی اسے جمائیاں روکتے دیکھ رہا تھا۔ بچے کافی دیر بعد سوئے تھے۔ صبا نے سوئی نورین کو اٹھا کر اپنے بائیں جانب احد کے ساتھ منتقل کیا۔ ایک کنارے پر ہادی تھا اور دوسرے کنارے پر صبا تھی۔ صبا اپنے ہاتھوں سے دکھتے سر کو دبا رہی تھی۔ ہادی نے کوہنی کے بل اونچا ہو کر اسے دیکھا۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ صبا نے سر سے ہاتھ ہٹا کر گردن اوپر کر کے اسے دیکھا اور پھر سر تکیے پر ڈال دیا۔ ہاں، آج ایک پریزنٹیشن تھی کلاس میں، پھر گھر آ کر اماں بھی سارے رشتہ داروں سے آج ہی ملن کرنے کا قصد کیے بیٹھی تھی، تو اب آئی ہوں گھر۔ پاؤں دکھ رہے ہیں، سر میں اتنا شدید درد، اف! وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ تو اماں کو آج کے لیے انکار کر دینا تھا، ہر آئے دن تو کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے، کل چلے جاتے۔ صبا نے اس کی بات سن کر ہاتھ سر سے ہٹائے اور کوہنی کے بل اوپر ہو کر اس کی جانب کربٹ لی۔ اماں نے بس تیار ہونے کا حکم دیا تھا، دوسرے مجھے شرم آتی، اس طرح بڑوں کو انکار کرتے، اور پھر آپ کے نہ جانے کی کمی کو بھی میں نے ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہادی اس کے تھکے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو اپنے رشتہ دار نہیں پسند، پتہ نہیں اماں کو کیوں ان کے ساتھ میل جول پسند ہے۔ یہ کہتے اس نے مڑ کر بیڈ کے ساتھ لگے سوئچ کو آف کر دیا۔ اب کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ آپ کیوں نہیں پسند کرتے؟ صبا تیکھے انداز میں بولی۔ اس بات کو رہنے دیں، چائے بنا دوں؟ سر میں زیادہ درد ہے تو؟ اس بات کو کیسے رہنے دوں؟ آپ کے انہی رشتہ داروں کے ڈر سے آپ کی اولاد کو کسی گناہ کی طرح چھپایا جا رہا ہے۔
मैं पूछती हूँ, क्या ये कोई इंसानियत है? और अगर उन लोगों को पता चल भी जाए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मुझे कहीं आना जाना इतना नहीं थकाता जितना आपकी माँ बहन का बच्चों के लिए रवैया परेशान कर देता है। इन्हें मेरा बच्चों को वहाँ बैठकर कॉल करना तक नहीं पसंद। अंदाजा है आपको मैं किस ज़हनी कैफियत में मुब्तला हो चुकी हूँ। हादी ने लब भींच लिए। खानदान में मेरी और शहरीन की शादी का मालूम है, अब ये नहीं मालूम कि अम्मा और आपी पर ये जाहिर क्यों नहीं किया गया, और अम्मा इस बात को छुपाकर करेंगी क्या? उफ, आप लोगों के खानदान की सियासत। सबा ने झुरझुरे ली। सर में बहुत दर्द है तो चाय बना दूं? हादी ने एक बार फिर ऑफर की। नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। मर्जी है, वरना मैं किसी के लिए ऐसी खदमात फराहम नहीं करता। सबा हंस दी। बहुत शुक्रिया ऑफर के लिए। वो चंद मिनटों में सो गई थी। हादी की जब कोहनी थकी तो वो सीधा हुआ। रात को बच्चे वॉशरूम और दूध के लिए कब उठे उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंख आहत के रोने से खुली। जाने क्या वक्त हुआ था। सबा, उसने बंद आंखों से आवाज दी कि आहत को चुप कराए। जी। हादी ने जरा की जरा आंखें खोलकर देखा। वो आहत को थपक रही थी, लेकिन वो फिर भी रो रहा था। क्या हुआ है इसे? पता नहीं, इस वक्त उठता तो नहीं है। हादी आंख मसलता उठ बैठा। कमरे में अभी भी वही नीली रोशनी थी। हादी ने घड़ी की जानिब देखा। 4 बजने वाले थे। फिर आहत को देखा। सबा उसके मुंह में फीडर दे रही थी। उसने हाथ से परे कर दिया। क्या हुआ आहत? सबा उसकी तरफ झुकी हुई थी, लेकिन वो रोने में लगा रहा। ये भी गनीमत था कि वो हल्की आवाज में रो रहा था। सबा ने उसे गोद में उठा लिया। हादी उठकर बैठ गया। सबा आहत को चुप कराने के जतन कर रही थी। उसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन आहत पर अपनी नींद खराब किए जाने का गुस्सा करने के बजाय वो उसके रोने पर परेशान हो रही थी। फिर वो उसे लेकर टहलने लगी। उसके बच्चे और उनके लिए उसके लाड। उसके सामने नींद भरी आंखों से उसके बेटे को कंधे से लगाए टहलती औरत थी। वो औरत कि जो सरहाने ढोल बजाने पर भी ना उठती थी, उसके बच्चों की जरा सी आवाज पर उठ जाती थी। वो अपना आराम सुकून उन बच्चों के सुकून के लिए कुर्बान कर देती थी। अनोखा नहीं था ये कि किसी के लिए आराम सुकून कुर्बान किया जाए। ये तो माओ का खासा हुआ करता है। अनोखा तो ये था कि वो उनकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ बन गई थी। अपने दुखते पैरों से उसके बच्चे को चुप कराने के लिए यहाँ से वहां तक चल रही थी। कमरे की इस नीली ठंडी रोशनी में वो चेहरा किस कदर पुरनूर लग रहा था कि उसके चेहरे पर फैली मोहब्बत का नूर इर्द गिर्द की हर शय को नूर में रंगता जा रहा था। हादी को लगा जैसे वो नूर किसी महलूल की मानंद हो, इसमें हल हुआ जा रहा था। जैसे सादा पानी में किसी रंग का महलूल शामिल होते पानी को रंग बख्श देता है। हादी नूर नूर हुआ जा रहा था। आहिस्ते से उठकर वो उस तक पहुंचा। सबा उसे सामने देखकर रुक गई। नींद में डर गया था। रोज आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, आज थकन में याद नहीं रहा। बस थोड़ी देर में अब सो जाएगा। थकन और नींद का गलबा था उस पर। हादी ने खामोशी से आगे बढ़कर आहत को उससे ले लिया। मैं सुला रही हूँ, आपके पास आके रोने न लग जाए। हादी ने आगे बढ़कर नरमी से उसके बालों को छुआ। बहुत थकी हुई हो, सो जाओ। सबा की पहली बार नींद से उठने के बाद यूं भक्त से नींद उड़ी थी। उसने आंखें फाड़ कर हादी को देखा। वो नरमी से मुस्कुराया और झटके से मुड़कर बेड पर जाकर सो गई और मुंह तक कंफर्टर ले लिया। उस रात हादी का दिल बदल गया था। हादी ने उसकी झुंझलाहट को बगौर देखा। वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। वो उस रात के बाद से सबा उससे कतराई रहती थी। हादी को समझ आ गई थी कि वो खालिस औरत थी, इसलिए खालिस जज्बे ही चाहिए थे उसे। बदतमीज खूर कैसे रहा है। सबा उसकी नजरों को महसूस करके जल रही थी। अब घर वालों की कॉल का जवाब सबा इंतहाई तमीज से दिया करती थी। ऐसी काया पलट की वजह उन्हें तो उसकी खुशगवार जिंदगी लगती थी। अब उससे आने के लिए कहा जाता तो ढेरों बहाने तराश लेती। ताल्लुकात की बहाली के बाद वो चाहते थे कि वो कम से कम 1-2 माह बाद एक चक्कर लगा लिया करे, लेकिन सबा हर बार नए बहानों से माजरत कर लेती। अब बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन फिर भी सबा के दिल को चैन नहीं था। हादी का दिल उसके लिए मोम हुआ था, लेकिन सबा झुंझलाई रहती। वो हादी को जो भी कहती, लेकिन उसके माथे पर अब बल नहीं आते थे। सबा फिर किस तरह से उससे झगड़े को बरकरार रख। वो पहले के अंदाज में सख्ती से बात करती,
जवाबन हादी हमेशा की तरह नाराज होकर इस झगड़े को दिनों पर मुहित नहीं करता था। चंद लम्हों के बाद वो जब नॉर्मली उसे मुखातिब करता तो वो जिद हो उठती। क्या मसला है, इसके साथ नाराज क्यों नहीं होता? आज संडे था, बच्चे लॉन में नसीबों और शाकरा के बच्चों के साथ खेल रहे थे। हादी अभी तक कमरे नशीन था, नाश्ते के लिए भी नहीं आया था। सबा हस्बे मामूल किचन में थी। गना आपी से कॉल पर बात भी हो रही थी। मोबाइल स्पीकर पर था। वो आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। आपी, फिलहाल तो आना मुश्किल है, क्योंकि कदमों की आवाज पर मुड़कर उसने देखा। हादी था। सबा, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती हो, मुझे लगता है अभी तक अम्मा से नाराज हो। वो मुड़ी, दोनों हाथ आटे से लुथड़े थे। स्पीकर ऑफ नहीं कर सकती थी, लब भींच कर रह गई। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। हादी फ्रिज से पानी निकालकर एक कुर्सी खींचकर बैठा और घूंट घूंट पीने लगा। वो अभी नींद से उठकर आया था। हाँ, मैं जैसे जानती नहीं हूँ तुम्हें। चंदा अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आपी, वहाँ सब कैसे हैं? उसने जल्दी से बात काटी। हादी उसे ही देख रहा था। एप्रन बांधे, ढीले जूड़े में बंधे बाल पुष्ट पर थे। एक लट बार बार चेहरे पर आकर उसे तंग कर रही थी। हादी उसका साइड पोज देख रहा था। सबा पहली बार अपने मैके में बात करती नजर आई थी उसे। सब ठीक है, और हाँ, मुबारक हो, एक बार फिर पुप्पो बनने वाली हो। सबरीन, उम्मीद से है। उसने नई भाभी का नाम लिया। ओफो, पानी का गिलास है कि दरिया, पिया ही नहीं जा रहा इससे, सदियों का प्यासा हो जैसे। सबा ने जोर से आटे में हाथ मारा। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खबर है। हादी ग्लास खाली करके खिड़की के पास उस पार देखने लगा। बच्चों की आवाजें यहाँ तक भी आ रही थी। तो फिर तुम कब अच्छी खबर सुना रही हो? वो शरारती अंदाज में बोली। जी, उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। जी सबा बहन, हम सब बेचैनी से आपकी जानिब से अच्छी खबर के मुंतजिर हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारे बच्चों को तो बस दूर से प्यार जताया करती थी। अपने बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा सलूक ना करो। और जो तुम नींद की प्यासी हो, जब वो रात को रोएंगे तो तुमने तो उठना नहीं है। गना ने उसे छेड़ा। वो लम्हों में पसीना पसीना हुई थी। आपी, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी किचन में मसरूफ हूँ। अल्लाह हाफिज। उसने जल्दी से आटे वाले हाथ से कॉल काट दी और चोर नजरों से हादी को देखा। वो खिड़की के उस पार देख रहा था। उसकी सांसें मुअतदल हुई और वो लापरवाह बनकर अपना काम करने लगी। हादी उठकर सबा के करीब काउंटर के साथ आ खड़ा हुआ। स्लिप से टेक लगाए वो बराह रास्त उसे देख रहा था। वो आटे से फारिग होकर अब आलू छील रही थी। वही हमेशा की तरह उसको नजरअंदाज करना। देख रहा है तो देखता रहे, लेकिन नहीं, वो पहले की तरह नहीं देखता था। अब सबा को गुस्सा आया। क्या मसला है, क्यों घूर रहे हैं? पल्ला आखिर उसका जब्त छलका। पहले तो बड़े जान फिशानी से मुझे इग्नोर किया करती थी, अब? हादी ने मुस्कुराहट जब्त की हुई थी, क्योंकि पहले आप लोफराना अंदाज में नहीं देखते थे। हादी का कहका बुलंद हुआ। वो खफीफ सी हो गई। मजाक एक तरफ, शुक्रिया मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे घर को संभालने के लिए, मेरी कोताहियों के बावजूद भी मेरे घर में रहने के लिए। मुझे अंदाजा है तुम अपने मिजाज के खिलाफ जाकर बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हो, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। उसने छुरी चलाते हाथ को रोककर संजीदगी से हादी को देखा। जरूरत तो है, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थे, फिर भी तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया। बोलते हुए हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई लट को पीछे किया। वो करंट खाकर पीछे हुई। दूर रहकर बात किया करें मुझसे, इंतहाई सख्ती से बोलती। वो कई कदम पीछे हुई। हादी ने लब भींच लिए। सबा, मुझे अपनी गलतियों का अंदाजा है, मैं उनको अब दुरुस्त करना चाहता हूँ। तुमने हमारे ताल्लुक की शर्त मोहब्बत रखी थी, और अब? वो रुका। सबा इसी तरह उसे घूर रही थी। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बात के इख्तिताम तक वो पुरसुकून हो चुका था। और शहरीन, उसने तीखे अंदाज में आबरू उचकाए। शहरीन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। उसके बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। इस तरह की यूं लगता है जैसे, वाह भाई बहुत खूब, हो सकता है आप सच ही कह रहे हो, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। दूसरा, आपको याद हो मैंने ये कहा था कि मसला आपका मुझसे मोहब्बत करना नहीं, मुझे भी तो आपसे मोहब्बत हो। हादी ने हंसकर सर झटका।
और कदम बढ़ाकर सबा के करीब आकर उसे कंधों से थामा। मोहब्बत तो तुम भी करती हो, लेकिन शायद ये बात तुम खुद भी नहीं जानती। सबा ने गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। वो चंद कदम पीछे को लड़खड़ा गया और बेयकीनी से उसे देखा। मैंने पहले भी कहा था, नजरिया जरूरत और तलब की बुनियाद पर मुझ तक ना आइएगा, और दूसरी बात, मुझसे दूर रहकर बात किया करें। हादी का दिल चाहा आगे बढ़कर एक लगा दे उसे। सारे अच्छे मूड का सत्यानाश हो चुका था। उसे कुछ सख्त सुनाने का इरादा तुर्क करके वो मुट्ठियां पीछे किचन से निकल गया। सबा ने गहरी सांस ली। बदतमीज, लोफर। इस बार नाराजगी लंबी हो गई थी। एक हफ्ता हो गया था हादी ने बात नहीं की थी और सबा को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। हादी इस इंतजार में था कि वो उसे मनाएगी। जो भी हो, इस झगड़े से पहले उन दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, तो वो इसी भरोसे से ही ये उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन सबा बीबी मजाल जो कोई फर्क पड़ा हो। हाँ, इस बार हादी ने सबा के खानों से बाइकआउट करने की गलती हरगिज नहीं की थी। खाने की रूटीन वही थी। आज वो ऑफिस से देर से घर आया था। देर भी क्या, बस 9 बजे थे। अमूमन इस वक्त तक नसीबो और शाकरा अपने क्वार्टर्स में चली जाती थी, लेकिन आज नसीबो उसे एंट्रेंस डोर के साथ ही मिल गई थी। थोड़ी तैयार शैयार और कदरे पुरजोश। हादी दिल में हैरान हुआ, लेकिन पूछना मुनासिब न समझा। सबा कहाँ है? वही सबके लिए संजीदा और कदरे रूखा अंदाज। मुझे बेगम साहब अपने कमरे में है, उसे कहो खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लगी है। नसीबों की बात पूरी होने से पहले ही वो हुक्म देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। लो जी, इतना तैयार शैयार होकर अब बेगम साहब किचन में काम करेंगी, और वैसे भी इतना कुछ बना हुआ है, साहब जी रोटी की जगह वही खा लेंगे। वो अपने हिसाब किताब लगाती सबा के कमरे में दाखिल हुई। पूरा कमरा गुब्बारों से भरा हुआ था। गुलाब और मोमबत्तियों से सजावट की गई थी, जैसे किसी जश्न की तैयारी हो। कमरे के एक जानिब शीशे की बड़ी सी मेज लगाई गई थी, जो कि मुख्तलिफ खानों से भरी हुई थी। कमरे में चहल पहल थी। सबा और बच्चे निक से तैयार थे। शाकरा ने भी नए सूट के साथ मेकअप किया हुआ था। वो जी बेगम साहब जी ऑफिस से आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपसे कहूँ खाना लगा दें। मैंने सोचा आज तो बहुत कुछ बना है, वो रोटी की बजाय ये सारा कुछ खा लेंगे। आह, भोली नसीबों, कोई उसे बताता कि भूख में सिर्फ रोटी ही नहीं और भी बहुत कुछ खाया जाता है। यानी उसकी सोच के मुताबिक रोटी भूख मिटा सकती थी, बाकी चीजें बहालत मजबूरी खाई जा सकती थी। आह भोली नसीबों, आह। सबा ने सुनकर सर हिलाया। अच्छा तुम लोग 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। वो अपनी साड़ी की फॉल को दुरुस्त करती ऊंची हील की टक टक बजाती किचन में आ गई। उसके पीछे हादी भी आ गया। उसकी तैयारी को देखकर हैरत हुई, लेकिन नाराजगी थी तो कैसे पूछता। सबा उसे नजरअंदाज किए फ्रिज से आटा निकालने लगी, फिर उसे कुकिंग रेंज के पास रखकर एप्रन निकालकर बांधा और फिर पेड़े बनाने लगी। हादी का दिल चाहा उसे इतने अच्छे हुलिये में काम करने से मना कर दे, लेकिन बहुत भूख लगी थी। ओह, आज कहीं इसकी सालगिरह तो नहीं? हादी ने सोचा। नहीं, सालगिरह अक्टूबर में है इसकी। बच्चों में से भी किसी की सालगिरह नहीं है, न मेरी। वो खुशफहम हुआ। न शादी की सालगिरह है। कहीं नसीबों या शाकरा की तो सालगिरह नहीं? ओह नहीं यार, मैं क्यों उसमें शरीक होऊंगा, और ये कौन सा उनके लिए साड़ियां बांध कर जाएगी। वो सोचता, फिर मुस्तरद कर देता, फिर चुपके उसे देखता। उठकर फ्रिज की जानिब बढ़ा कि जो भी होता उसने लाजमी कुछ न कुछ बना रखा होगा। फ्रिज तकरीबन खाली था। हादी ने मुंह बनाया और मुड़कर उसे देखा, जो तवा रखने के बाद अब आन सेट कर रही थी। वो चुपचाप आकर बैठ गया। इतनी अच्छी लग रही है, क्या जरूरत थी इस हुलिये में रोटी पकाने की? किसी मुलाजमा से कह देती। फिर याद आया, अरसा हुआ वो मुलाजमों के हाथ का खाना छोड़ चुका था। अगर बना देती तो वो कौन सा खा लेता। लेकिन जो भी, ऐसे तो साड़ी खराब हो जाएगी। एक तो ब्लैक कलर है, खुश्क आटा लग जाए, जरा सा जो उसे परवाह हो। वो कड़ा, जबकि एहतियात से रोटी तवे पर डाल चुकी थी। साड़ी का पल्लू ऊपर की और आदतन किचन का काम करने से पहले खुले बाल जूड़े में बांध चुकी थी। ये और बात सिल्की बाल होने की वजह से जरा सी हिलजुल उस जूड़े को ढीला कर देती थी। अभी भी ऊंचा किया जाने वाला जूड़ा ढलक कर गर्दन तक आ चुका था और कानों में पहने आवीजे अलग गर्दन को छू रहे थे। वो जब रोटी को हाथ पर बेलती तो चूड़ियां आवाज करने लगती। हादी गहरी सांस लेता फिर से उसे तकने लगा। पहली रोटी उठाकर वो उसके आगे रखकर जा चुकी थी और सालन दोपहर वाले सालन को गर्म करके उसके आगे रखा था। मम्मा,
हाथ किचन के दरवाजे में खड़ा जोर से बोला। सबा ने तीसरी रोटी उतारते हुए मुड़कर उसे देखा। आपने 5 मिनट का कहा था। वो मुंह फुलाए नाराजगी से बोला। अब वो कदर साफ बोलता था। हादी ने भी सर उठाकर उसे देखा। आओ मेरे शेर। हादी ने मुस्कुराकर उसे देखा। बाबा। उसे देखकर खुशी का इजहार करता वो उसकी जानिब आया। आज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हादी ने उसे गोद में बिठाया। ऑफिस में बहुत काम था। तुम बताओ इतना देर तक क्यों जाग रहे हो और ये तैयारी किस खुशी में? हादी ने एक छोटा सा निवाला बनाकर उसके मुंह में डालना चाहा। बाबा, मैं ये खाऊंगा तो फिर वो सब कैसे खाऊंगा? उसे नफी में से हिलाकर बाप की अकल पर मातम किया। सबा स्लिप पर गिरे खुश्क आटे को साफ करके अब हाथ धो रही थी। फिर एप्रन उतारकर उसे तय करके दराज में रखा और बाकी आटे को फ्रिज में रखा। वो बाप बेटे की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी। क्या सब खाओगे? वह हादी हैरान हुआ। ओहो, मम्मा ने आपको नहीं बताया? अब के सबा गड़बड़ाई। चलो आहत, मैं अब फ्री हूँ। हादी ने आबरू उचकाकर आहत से पूछा। बाबा, आज मम्मा का फाइनल का रिजल्ट आया है। उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया है, इसलिए आज घर में पार्टी है। मम्मा ने सबको इनवाइट किया था, आपको नहीं बुलाया। हादी का बेयकीनी से मुंह खुला। सबा ने दाएं हाथ से माथे को हल्का सा छुआ। आहत, बाबा सारा दिन ऑफिस में काम करके थक गए हैं, वो आराम करेंगे, चलो आओ। उसने आगे बढ़कर आहत का हाथ पकड़ा। बाबा, आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे? वो सदमे भरी आवाज में बोला। वो दोनों ही गड़बड़ा गए। नहीं बेटा, मैं भी चलता हूँ। हादी उसे उठाए उठ खड़ा हुआ। फिर वो सबा के कमरे में आ गए। हादी तो कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गया। वाओ, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। साहब जी, हम सब ने मिलकर कमरा सजाया है। नसीबो खुशी से पुर लहजे में बोली। सबा ने एक गहरी सांस ली और तने असाब ढीले किया। ये उसकी खुशी का दिन था और खुशी की तरह ही मनाना चाहिए था। वो छुरी उठाती टेबल पर रखे केक पर फेरने लगी और हादी टेबल पर अनवाओ इकसाम के खाने सजे देखकर दांत पीस रहा था कि उसे दोपहर का कद्दू गोश्त का सालन पेश किया गया था। और सबा नाई मखलूक को पता नहीं कहां से इल्म हो जाता था कि जो हादी की नापसंदीदा चीजें हैं वो नाराजगी के सारे दिनों में बनाती रही। क्योंकि वो सबा के हाथ की बनी होती थी तो हादी चुपचाप खा लेता था। बहरहाल वो बहुत जायकेदार होती थी, लेकिन यहाँ सजी टेबल और फिर कद्दू गोश्त। उफ सबा, जालिम औरत, अल्लाह पूछे तुमसे। मम्मा, आपकी सालगिरह तो नहीं है, फिर क्या गाएं? उसे केक काटते देखकर नौरीन ने बरवक्त सवाल पूछा। सब हंस दिए। कांग्रेचुलेशंस टू यू मम्मा कहेंगे, पागल। आहद ने बहन को तासुफ से देखते कहा। फिर तालियों की आवाज और सबकी मिलीजुली मुबारकबादों के बीच उसने केक काटा। हादी उसके पीछे ही खड़ा था। सबा ने पहले झुककर दोनों बच्चों को खिलाया और नसीबो शाकरा की वजह से उठकर हादी को भी खिलाया। केक भी खुद बेक किया। हादी का दिमाग अभी तक कद्दू गोश्त में अटका था। जी। सबा उसकी बात का पस मंजर समझकर मुस्कुराई। हादी उसकी मुस्कुराहट से तिलमिलाया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? सबा केक खिलाकर उसके साथ ही खड़ी थी। कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, बस छोटा सा फंक्शन था। वो जैसे इंकिसारी से बोली। छोटा सा फंक्शन और इतना ज्यादा एहतमाम, और मैं कौन हूँ? इस घर का सरबराह, और मुझे पता ही नहीं और बुलाया भी नहीं। और इतना कुछ बनाकर मुझे जानबूझकर तुमने 3 रोटियां खिलाई, वो भी कद्दू गोश्त के साथ। सबा का दिल चाहा कह के बुलंद करे, लेकिन जब्त किए रखा। आपका ही फरमान था, मुझे भूख लगी है, खाना पेश किया जाए। सबा, किस कदर जालिम हो तुम। आपको कद्दू गोश्त खिलाया इसलिए? ये सारी गुफ्तगू सरगोशी में हो रही थी। नसीबो शाकरा तो उन्हें बातें करता देखकर यूं खुश हो रही थी गोया अपनी लव स्टोरी चल पड़ी हो। नहीं, नाराजगी में मुझे नहीं बुलाया इसलिए। वैसे मुबारकबाद, और बहुत अच्छी लग रही हो। वो भी सरगोशी में बोला। सबा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ और वो जल्दी से हादी की जानिब से रुख मोड़ गई। हादी ज़ेरे-लब मुस्कुरा दिया। फिर हादी तो सिर्फ चख ही पाया था, वो भी बच्चों के इसरार पर, क्योंकि डट कर रोटी खाने के बाद चखने की गुंजाइश भी बामुश्किल निकली थी। फिर घंटे बाद नसीबो और शाकरा ने जाने की इजाजत मांगी थी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, दोनों ही रच के सोने हैं। शाकरा नसीबो जाते हुए आहिस्ता आवाज में बोलती जा रही थी। बेगम साहिबा ज्यादा सोनी है। नसीबो तो पहले दिन से उसकी आशिक थी। तुमने देखा कैसे दोनों मोहब्बत से बातें कर रहे थे? शाकरा ने जहन में उस मंजर को ताजा किया। हाँ, मुझे लगता है अब उनके बीच कोई झगड़ा नहीं रहे।
वैसे भी बेगम साहिबा अच्छे मिजाज की हैं, साहब जी बस गुस्से वाले हैं। वो दोनों बातें करते अपने क्वार्टर्स की जानिब बढ़ती जा रही थी।